होमवर्क के वास्ते जो क्वेश्चन था उसके तरफ मेरे तरफ देखो. मीन डेविएशन इज, टेल मी, मीन डेविएशन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन. Mean deviation is the measure of central tendency or dispersion. So this is measure of dispersion. Now observations are increased by 20. What does it mean? Y is equal to, this is x plus 20. So the mean deviation of y, mean deviation of y is the mean deviation of x, is the mean deviation of x, and that will continue to be 25. That would continue to be 25. बाळांनो हे आलं का? ये तुमका आया है क्या? It will continue to be 25. Okay. Then I consider the fourth question. Variance of x is 20. Variance of x is 20. Chris Jain, are you there in the lecture? Chris Jain? Chris? This was your doubt you were asking continuously yesterday. This was your doubt you were asking continuously yesterday. Right? See, I am concerned with every student. I keep in my mind what you have asked, what you had asked. Maybe I did not answer it that time, but I know that I am going to cover it. तो देखो मेरी तरफ, मेरे का. Observations are divided by 2. What does that mean? Y is equal to, observations are divided by 2 and then 50 is subtracted. Then 50 is subtracted. Now remember, therefore standard deviation of y is modulus of 1 by 2 into standard deviation of x. But they are talking about variance. So sigma square y is 1 by 4 into sigma square x. So this is 1 by 4 into 20, which is equal to 5. That is equal to 5. हे कळलं का बाळांनो तुम्हाला? क्रिस समझा क्या बेटा तेरे को कि वेरिएंस म्हणजे स्क्वायर इफेक्ट के साथ आता है. तो कैसे सोचने का है, समझा क्या तुमको? वेरी गुड, वेरी गुड. One more situation like that. Variance of x is a. What is the variance of this? So y is equal to, this is x minus a, that over b. You can split this as 1 upon b into x and minus a upon b. So standard deviation of y is modulus of 1 upon b into standard deviation of x. And the variance of y would be 1 upon b square into variance of x. So it would be a upon b square. Therefore, it would be a upon b square. This note is extremely important. Have you understood this? No, sir. Sir, Oh. sir, I have a doubt. Sir, यहाँ पे already variance दिया हुआ है, right? So why are we squaring it again? Variance तो already square होता है ना? Okay. Any more? Any doubt? Anybody else? Sir, can you repeat second last line of this question? मैं तुमसे क्या करूं? तुमने मेरे को बोलो कि क्या दिया है? Variance of x is a. Now variance of x is a means what? Sigma square x is a. Variance of x is a means sigma square x is a. इतपर्यंत तरी तुम्हाला कळलं का? इतपर्यंत sir. तरी तुमको समझा है क्या? अरे बाळांनो, Yes. तुमको इतना समझा है क्या? Okay. Now remember, y is given to be equal to x minus a over b, means this is 1 upon b into x and minus a upon b. This is y. Now we said any measure of dispersion of y is modulus of this 1 upon b
into measure of dispersion of x. So standard deviation of y is modulus of 1 upon b that into standard deviation of x. But तरी आपल्याला variance विचारला की नाही, मग variance always goes with the square effect. Variance always goes with the square effect. And therefore sigma square y will be 1 upon b square into sigma square x. पण हा variance of x च त्यांनी a दिलेला आहे. आणि therefore it is a upon b square. काय problem आहे? Hence it is a upon b square. क्या problem है? समझा सर. समझा है क्या सबको? तो 1 upon b त्याचा कोइफिशियंट आहे ना अथर्व. तुम्ही थोडा तरी विचार करा. काल आपण काय लिहिलं? If y is equal to ax plus b, any measure of central tendency of y is a into measure of central tendency of x and that plus b, and any measure of dispersion of y is modulus of a into measure of dispersion of x. हे लिहिलं कधी काल आपण अथर्व? अरे अथर्व. मग ह्याचा x चा कोइफिशियंट 1 अपॉन b आहे की नाही? या x चा कोइफिशियंट 1 अपॉन b आहे की नाही? So it is modulus of 1 upon b into measure of dispersion of x म्हणजे 1 upon b into sigma x, but variance म्हणजे square effect. So 1 upon b square into sigma square x, which is a upon b square. ओके, 1 upon b कुठून आला? तर तो त्यांनी दिला, मी नाही आणलं त्याला कुठून. I have not borrowed it from anywhere. They have given that 1 upon b. समझा है क्या तुमको? हो म्हणा. हो. दिशा. दिशाला उलट केलं की काय होतं? लग्न होतं. कळलं का? दिशानी शीर्षासन केलं की ते लग्न होतं. दिशाच्या उलट शादी. Okay. Now I want your complete concentration. Look at me. ये तुमको समझा है क्या पण बाळांनो? ये तुमको समझा है क्या? ये तुम्ही काहीतरी बोले ना. Very good. Sure. Abhi, I move on to the note number 6. I consider the note number 6. It was found that the mean of group of 10 observations. Tell me mean of the group of 10 observations. What is 10? Mean of the group of 10 observations. Tell me what is 10. N. Tell me what is 10. Tell me what is 10. Number of observations. That is n. That means it is n. That means this is. Oh. Now n is 10, mean is 40, variance is 25. Mean means n is 10, x bar is equal to 40, and variance of x is 25. It was found later on that the observation 6 was taken wrongly instead of the correct observation being 8. If you remember, we had done this kind of question in the correlation regression chapter. We had taken this kind of question in the correlation regression chapter. अभी तुम जरा मेरे तरफ देखो और फिर समझने की कोशिश करो. नहीं कळलं तर नहीं म्हणा. नहीं समझा तो नहीं म्हणो. Look at me. Imagine that if I consider x as 1, 2,
So x square column will be 1 square, 2 square. My question is then tell me what is summation x. Tell me what is summation x. 3. 3. 3. 3. Then my question is what is summation x square. 5. 5. अभी किसी ने मेरे को बोला कि ये जो 1 लिखा है वो 1 नहीं होना चाहिए, ये 1 1 नहीं है, वो 11 है, तो फिर ये समेशन x ये रॉन्ग टोटल हो गई. समेशन x इज द रॉन्ग टोटल. बाळांनो हे 12वीला पण लागणार आहे. आणि फॉर्च्युनेटली यू आर स्टील इन 12th स्टँडर्ड. बरोबर ना? So we had taken this in foundation correlation chapter. We also had taken this in 12th standard mathematics, and we are taking this for the 3rd time. Okay. Fortunately, you are in the 12th standard again. So summation x wrong total is 3. अभी मेरे को करेक्टेड टोटल निकालना है. मेरे को 3 कैसे मिला? 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3. बट मेरे को 1 नहीं चाहिए, तो 1 नहीं चाहिए तो I will subtract 1. What I don't want I delete. What I don't want I subtract. And what I want I add. तो 1 subtract करो, 11 add करो, and I will get summation x correct to be 13. Summation x to be 13, and you can see that 11 plus 2 is 13. That is the corrected total. Clear? And then my question to you is, tell me in case of summation x square, what do you do? I don't want 1 square, so I subtract 1 square. And I want 11 square, so that I add, and I will get summation x square correct. And therefore summation x square correct is summation x square wrong minus x wrong ka square plus x correct ka square. So the one line you have to understand, add what is correct, subtract what is wrong. Subtract what is wrong, add what is correct. अभी जरा मेरे तरफ देखो, थोड़ा सा हम इस पर समय अगेन स्पेंड करते हैं. वैसे हमने ये किया है कोरिलेशन के चैप्टर में, बट परत एकदा. So what is the one line statement that you have to understand? The one line statement that you have to keep in mind is subtract what is wrong. Subtract what is wrong. Subtract what is wrong. And add what is correct. Add what is correct. अभी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया summation x correct is summation x wrong minus x wrong and plus x correct. Subtract what is wrong, add what is correct, and summation x square correct. Summation x square correct is summation x square wrong minus x wrong का square plus x correct का square. बाळांनो हो म्हणा. हो असं म्हणा. ये तो हो. अभी जरा तुम मेरे तरफ देखो गए. अभी तुम जरा मेरे तरफ देखो. Imagine. Imagine that the wrong observation. Imagine that wrong observation, correct observation, and n. Wrong observation is given, correct observation is given. तो n पे क्या इफेक्ट होगा? समझो तुम्हारे को 10 बॉयफ्रेंड्स है. तुमको 10 बॉयफ्रेंड्स है. आई करे, तुमको 10 बॉयफ्रेंड्स है. फिर एक गया बाहर और एक आया अंदर. एक गया बाहर, एक आया अंदर.
एक जो गलत था वो गया बाहर और एक जो अच्छा है वो आया अंदर, तो n will remain same. एक गया बाहर, एक आया अंदर, तो 10 boyfriends will remain 10 boyfriends, no change. समझा ना? एक बॉयफ्रेंड गया उड़त और एक बॉयफ्रेंड आया अंदर, तो 10 का 10 ही रह गया. अभी एक गया बाहर पर कोई नहीं आया अंदर. एक गया बाहर पर कोई नहीं आया अंदर, तर n will reduce, then it will become n minus 1. अभी कोई नहीं गया बाहर, कोई नहीं गया बाहर और एक आया अंदर, कोई नहीं गया बाहर और एक आया अंदर. समझा? तो फिर n will increase. पहले 10 बॉयफ्रेंड्स थे, तो अभी 10 का 11 हो गया. मजास मजा, मजास मजा. अभी 10 में से एक भी बाहर नहीं गया और एक और मिला, तो मुझे 11 हो गया. समझा क्या तुमको? यारे वाळंद तुमको समझाए क्या? ये लिखो, लिखो. एक गया बाहर, एक आया अंदर, and will remain same. एक गया बाहर, कोई नहीं आया अंदर, n will reduce. कोई नहीं गया बाहर, कौन जाएगा ना तुमको छोड़ के, पर और एक नया आ गया, तो फिर n प्लस 1. पॉइंटाचा मुद्दा आहे काय? पॉइंटाचा मुद्दा आहे, पॉइंटाचा मुद्दा. चावट जल्दी समझता है खुशी. खुशी म्हणजे चावट जल्दी समझता है, तो वो तो होगा ही ना. तो अभी यहाँ इस प्रॉब्लम के लिए मेरे तरफ देखो. That x bar is given to be 40, variance is given to be 25. One observation 6 is wrong, that means x wrong is 6 and x correct is 8. x wrong is 6, वो गया बाहर, आणि x correct is 8, वो आया अंदर, तो n will continue to be 10. Then n will continue to be 10. समझा है क्या तुमको? तुम्ही काहीच बोलत नाही का? तुमची माझ्याशी कटली Yes, का? sir. हा, मग मायक्रोफोन अनम्यूट करा आणि बोला ना. Alright. Now I consider x bar is summation x and that over n. What it means is 40 is summation x and that over 10. So 40 into 10 is equal to summation x. But mind well, this is wrong because this is based on wrong observations. So this is 400. But I want summation x correct, which is summation x wrong. Baranno, this is extremely important. Minus x wrong plus x correct. तो this 400 में से 6 गया और 8 आया, and therefore this is 402. Therefore x bar correct. Again formula would remain the same, so that will become 40.2. ये हो गया corrected mean. ये हो गया rectified value of mean. This is corrected mean. बाळांनो हे तुम्हाला कळलं का? ये तुमको समझा है क्या बाळांनो? आरती कळलं का? आरती, आकांक्षा कळलं? Very good. Okay. Now I do the similar kind of work for the variance of x. My question to you is, tell me what is the formula for the variance of x? What is the formula for the variance? तुम्ही बोला ना, अनम्यूट करा ना. आता मी तुम्हाला दिली आहे ना ती फॅसिलिटी. 1/n into summation x square minus x bar square. Products, Shivam. So 1/n summation x square minus x bar the square. Now the variance has been given to be 25. But पहले मेरे को wrong से करना पड़ेगा ना.
ये पहले तो मेरे को रॉन्ग से करना पड़ेगा। तो 25 इज इक्वल टू 1/10 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर रॉन्ग माइनस एक्स रॉन्ग था 40, तो 40 का स्क्वायर। पहले मेरे को सब रॉन्ग रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर मैं करेक्ट कर सकता है। हाउ टू आयडेंटिफाय इट इज रॉन्ग और करेक्ट म्हणजे काय? त्यांनी दिलंय ना सोनिया, रॉन्ग इज 6, करेक्ट इज 8। ये जो ओरिजिनल दिया है वो रॉन्ग होगा, जो नया निकालेंगे वो करेक्ट होगा। ये तुम्ही थोडा विचार करा ना, अरे जे दिलंय ते रॉंग आहे की नाही, त्यांनी 6 वर बेस दिलाय की नाही, आणि वी हैव टू फाइंड इट ऑन द बेसिस ऑफ 8 की नाही, सो वी हैव टू फाइंड द करेक्टेड वैल्यू की नहीं। सो 25 प्लस 1 4 इसका होगा 1600, दैट इज इक्वल टू 1/10 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर रॉन्ग म्हणजे 1625 इंटू 10 म्हणजे 16250 is summation x square wrong. Now summation x square correct is summation x square wrong minus x wrong ka square plus x correct ka square. So this is 16250 minus wrong x is 6, तो 6 square आणि correct x square म्हणजे 8 square। तो अभी मेरे को बोलो ये कितना आता है, अभी तुम मेरे को बोलो कि ये कितना आता है। Sir, it should be 25. काय 25 हो? 1625 रहना चाहिए था सर, आपने 250 लिखा। अरे सोनिया, हा 10n ची व्हॅल्यू पण इकडे वर येणार की नाही? ही 10 व्हॅल्यू आहे ती अशी वर येणार की नाही इकडे? हो तुम्ही अगदीच कॉपी करता शब्द, अगदी लाईन टू लाईन। तुमचं तुम्ही Sir, जरा final answer is 16262. अरे हो, पण आम्ही अजून आता इथेच थांबलोय की 10 नी मल्टिप्लाय होणार की नाही। मग आता ह्या डिफरन्स किती आला? 16262. 16262 समझा क्या तुमको? This is summation x square correct. Now you want variance correct. That variance correct is 1/n summation x square. फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अभी करेक्टेड के साथ करना पड़ेगा। तो दिस इज 1/10 एंड देन 16262 और करेक्टेड मीन था 40.2, उसका स्क्वायर। ठीक है, 40। ये तुमको आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन करने में कोई कौतुक नहीं है, कैलकुलेशन करने में कुछ भी कौतुक नहीं है, कौतुक है वो प्रोसीजर समझने में। चुकलं का? 16278 आता है क्या? कसं व्हायचं तुमचं बाळांनो? कैलकुलेशन पण चुकतो। करो, अभी ये करो तुम। अभी ये तुम करो। तो टेल मी हाउ मच इज दिस वेरिएंस कितना है? 11.76 is the corrected variance. 11.76 is the corrected variance. ये तुमको समझा है क्या? All these questions are very favorite questions for the paper setters. पेपर सेटर को ये सब क्वेश्चंस पूछना अच्छा लगता है। टाइम वैल्यू का स्टडी तुमने किया है क्या शुरू? टाइम वैल्यू का स्टडी तुमने शुरू किया है क्या? गुड। वैसे ही उसी लाइन में, उसी के लाइन में ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पूरा करो, तो 20 मार्क्स का सिलेबस और मिलेगा। गुड, हे कळलं का तुम्हाला? तो फिर अब तुम मेरे को बोलो, हो गया है क्या सबका? No, sir. नो सर, मग कर
ना सोन्या. नो सर, कर्म कर ना सोन्या. करो. हो गया. कड़क. कड़क. n इक्वल टू 10 कसं आलं? किरण, बाई ग मी तुला काय करू? बाई ग मी तुझं काय करू? अगं n त्यांनी दिलाय सोन्या 10. क्वेश्चन वाचा रे तुम्ही. किरण कोकरू. कोकरू. सर खाली करा. काय करू खाली? करेक्ट 8 आहे ना. 8 कुठे करेक्ट? अगं ते ऑब्झर्वेशन आहे सोन्या. नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन 10 आहे की नाही? एन 10 होता की नाही? रॉंग ऑब्झर्वेशन इज 6 अँड करेक्ट ऑब्झर्वेशन इज 8. काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? किरण कोकरू, नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन 10 आहे की नाही म्हणा? ऑब्झर्वेशन करेक्ट इज 8. रॉंग ऑब्झर्वेशन नाही. मी काहीच नाही केलं. परत करायचं का आपण? वापिस करेंगे क्या हम? बघा इकडे. लुक एट मी. Yes, sir. तुम्हारे लिए कुछ भी, तुमके लिए कुछ भी. देखो मेरी तरफ क्या दिया है. आता नीट पढ़ो. काय तुम पढ़ो क्वेश्चन को. तुम क्या करते हैं? सॉल्यूशन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है तुम सब. मैं क्या करता हूं वही देखते हैं, तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते. असं कसं चालेल? ऐसा कैसा चलेगा? करो अभी. लुक एट मी. is found at the mean of group of 10 observations. किरण बोल 10 क्या है? n number of n is 10. Correct. n झाला. आता mean is 40. What is 40? arithmetic mean. x बार आलं ना 40. अरे x बार mean म्हणजे x बार ना. हो. मग x बार is 40 आणि व्हेरियन्स इज 25. मग व्हेरियन्स म्हणजे काय असतं? व्हेरियन्स म्हणजे सिग्मा स्क्वेअर असतो. दॅट इज 25. ओके. नाउ वन ऑब्झर्वेशन इज रॉंग. 8. 6 इज रॉंग म्हणजे x रॉंग इज 6 आणि करेक्ट ऑब्झर्वेशन इज 8. हे कळलं का? हो. एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो. है, एक ऑब्जर्वेशन करेक्ट है. ऐसा उन्होंने दिया है. मैंने मेरे मन से कुछ नहीं लिया है. ना मन से लिया ना तन से लिया. ना मन से लिया ना तन से लिया. इसको तो हमने से प्रॉब्लम से लिया. अभी हमको x बार की वैल्यू पहले रॉन्ग के लिए काम करना है. फर्स्ट यू हैव टू वर्क विथ रॉन्ग and then you have to rectify it, make it correct. Then you have to rectify. कळलं का? तो फिर x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n. मग x बार उन्होंने दिया है 40. समेशन x n है 10. इसको मैंने इधर लाया तो 40 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू समेशन x आणि दैट इज इक्वल टू 400. बट ये रॉन्ग है. पहले जो होता है वो रॉन्ग होता है. मग नंतर जरा प्रॅक्टिस झाली की करेक्ट होतो. पहिले रॉन्ग होता है. कळलं का? पहिले जरा रॉन्ग होता है, मग नंतर करेक्ट होता है. कळलं का? पार्थ पवार. ओके.
नाउ हमको चाहिए समेशन x करेक्ट. दिस समेशन x करेक्ट इज समेशन x रॉन्ग माइनस x रॉन्ग प्लस x करेक्ट. तो 400 मायनस 6 प्लस 8 म्हणजे 402. बाळांनो हे तुम्हाला कळलं का? मग x बार करेक्ट इज समेशन x करेक्ट आपण परत तोच फॉर्म्युला n. सो इट इज 402 अपॉन 10 म्हणजे 40.2. हे कळलं का? ये तुमको समझा है क्या? हो सर. ओके, अभी तुम वेरियंस के तरफ चलो. चलो म्हणा आम्हाला काय जातो, तुम्ही जिथे घेऊन जाल तिथे आम्ही जातो. चलो म्हणजे काय म्हणू, तुम्ही चला आम्ही येतो मागे मागे. ठीक आहे. मला कुठे काय येत आहे म्हणू. तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दी है उन्होंने आणि दैट इज गिवन टू बी 25. दैट मीन्स समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर इज 25. हे कळलं का बाळांनो? ये तुमको समझा है क्या? त्याच्यात समजण्यासारखं काही नाहीये. ये फॉर्म्युला है. फिर 1/10 समेशन x स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर विच इज 25. म्हणजे समेशन x स्क्वायर अपॉन 10 is 25 plus 1600 which is 1625. Which is 1625. So summation x square is 1625 into 10 which is 16250. हे कळलं का? अभी इधर तक तुमको समझा है क्या? And then you have to find summation x square correct, which is summation x square wrong minus wrong x का square plus correct x का square. म्हणजे 16250 minus 6 square plus 8 square. ये कैलकुलेशन तुमको करना है. म्हणजे 16250 minus 36 आणि plus 64 ये तुमको करना है. तुम्ही करा. अब तुम करो. One 16278. 16278. अभी मेरे को परत सिग्मा स्क्वायर करेक्ट निकालना है. वही फॉर्मूला समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द स्क्वायर. पर अभी करेक्टेड निकालना है तो ये सब मेरे को करेक्ट लेना पड़ेगा. तो 1/10 इंटू 16278 आणि माइनस 40.2 का स्क्वायर. करो बताइए कितना होता है. This is 16278 minus 40.2 का स्क्वायर. करो. 40.2 का स्क्वायर कितना होता है तुम करो बाळांनो. Hmm. 16104. 16104. तो ये डिफरेंस कितना आया? 11.76. That is the corrected variance. आणि अगर उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, तो फिर इट इज रूट ऑफ 11.76 whatever it comes. आता कळलं का? अगं कोकरू, तुला कळलं का कोकरू? हो सर. कडक. अभी तुमका करेंगे क्या? सेकंड क्वेश्चन तुमका करेंगे क्या? The mean of group of 50 observations is 100. Standard deviation is 20.
तुम करेंगे क्या? Observation 5 was wrongly recorded and deleted from the data. What is the corrected mean and variance? तुम करेंगे क्या? तुम करेंगे क्या? छोटा सा क्वेश्चन है, करो। छोटा छोटा क्वेश्चन है, तुम करो। तुम इसको करो। हो गया क्या? यस प्रथमेश, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर म्हणजे वेरियंस होता है। करो। मी तुमचं काय करू? मी तुमचं काय करू? काय स्नेहा वेडव पाठक? वेडव पाठक काय नाही, काय मी काय बोललो ना, सहज तुझी आठवण आली, बस बाकी काही नाही. तेरी याद आ गई. करो. वैशु वैशु वैशु, तू मेरे को जो याद नहीं दिलाना चाहिए वो याद आती है मेरा ये वैशु सुन के. वैशु, पुराने यादें ताजा होती है. पुरानी यादें ताजा होती है. क्लास में लड़की थी वैशु, अनु, अशा मुली होत्या, त्यांची आठवण होते. काय वैशु, अनु मैत्रिणी होत्या, त्यांची आठवण येते. हो गया क्या तुमका? तुमका हो गया क्या? आता नहीं तो नंतर. तो फिर अभी तुम मेरे तरफ देखो. काही चांस है का येण्याचा? कुछ चांस है क्या आंसर मिलने का? तो फिर अब तुम मेरे तरफ देखो. The mean of group of 50 observations is 100. So tell me, what do you understand? N is 50 and the mean is 100. Standard deviation is 20. Means the variance is 400. And X wrong is 5. That is deleted. That is deleted. But the correct observation is not added. Correct observation is not added. अभी तो मेरे को बोलो कि ये n पर क्या इफेक्ट होगा? n पर इफेक्ट क्या होगा? It will go down from 50 to 49. एक गया बाहर, एक गया बाहर, कोई नहीं आया अंदर. n-1. तो फिर ये 49 बन गया.
अभी पहले हमको रॉन्ग से स्टार्ट करना है. सी द प्रोसेस. We have to start with the wrong and then we have to arrive at what is correct. तो पहले x wrong से शुरू करो, x bar. That x bar is summation x upon n. Now x bar is given to be 100. This is summation x over what? 50. So 50 into 100. 5000 is summation x, but that is wrong. Then summation x correct is equal to summation x wrong minus x wrong plus x correct. but x correct दिया ही नहीं है उन्होंने, तो 5000 minus what is wrong x? 5. So 5000 minus 5 म्हणजे कितना आता है? 4995. आणि therefore x bar correct will be 4995. That divided by this is 49. तो कितना है बोलो? 101.93. 101.94 is the corrected mean. ये तुमको समझा है क्या? ये तुमको समझा है क्या? कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि ऐड करेक्ट क्या करना है वो ही नहीं दिया है. तो करेक्टेड वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ 5 सब्ट्रैक्ट करो. अभी वेरिएंस का फॉर्मूला देखो. अभी तुम वेरिएंस का फॉर्मूला देखो. That is summation x square upon n minus this is x bar का square. So this is 400 is equal to this is summation x square over 50 and minus x bar is 100 का square. म्हणजे 400 plus अभी 100 का square कितना होता है? 10,000. This is summation x square over 50. म्हणजे 10,400 into 50 is summation x square, but this is wrong. तो बोलो मेरे को ये कितना होता है? बोलो मेरे को ये कितना होता है? 52,000. चेक करो कितना हो गया. So summation x square wrong is 52,000. लेकिन summation x square correct is summation x square wrong minus wrong x का square plus correct x का square. So this is equal to 52,000 and that minus 5 का square. अभी ये तो कुछ नहीं दिया है. मतलब बोलो मेरे को ये कितना हो गया? तो 5,20,000 है. 5,20,000. ओके. तो फिर अभी मेरे को बोलो ये कितना हो गया? ये तुम मेरे को बोलो कितना हो गया? फाइव वन ट्रिपल 975. 59 519975. आता corrected variance correct will again be the same, but it is now n reduced. So 519975 that divided now by 49 and minus 101.94 का square. ये तुम काम सकते हो. This is corrected variance. This is corrected variance. निकालो कितना हो गया. बाळांनो खूप 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 इम्पॉर्टंट आहे आणि हे 20 मार्क खूप सोपे आहेत. किती आलं करेक्टेड व्हेरियन्स? 219.97. This is 219.97. Okay, 219.97. ये हो गया करेक्ट वेरिएंस. ये हो गया करेक्ट वेरिएंस. अगर उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट पूछा तो फिर इट विल बी रूट ऑफ 219.97. ये करेक्टेड हो गया. पण जाऊ दे, ते जे विचारतील तेवढंच काढायचं, सगळं काढायचं नाही.
जितना बोला है उतना निकालो, सब कुछ निकालने का है क्या? नहीं निकालने का। 14.83 अगर पूछा तो लिखेंगे ये। कळलं का बाळांनो, तुमको समझा है क्या? Subtract what is Yes, wrong. sir. हाँ, subtract what is wrong. Add what is correct. Subtract what is wrong. Add what is correct. प्रथमेश, अरे करेक्ट 0 नहीं है बाळा. 0 है तो मग n will not change. करेक्ट 0 लेके नहीं चलेगा, वो समझने के लिए मैंने 0 लिया है. करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज नॉट 0. मग नाहीतर n नाही होणार चेंज. n will remain 50 if you consider that way. थोड़ा विचार करा before you ask. Think of it. करेक्ट टेक्स्ट दिया ही नहीं है, इसके वास्ते n रिड्यूस हो गया. करो तुम अभी, तुम अभी करो. झालं सर. Congrats. सर वो 49 कैसे आया था? अरे n कितना है? n कितना है? 50. एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है, वो डिलीट किया की नाही? हो. म्हणजे 50 तर 49 झालं की नाही? ओके. अरे तुम्ही ते त्या त्या वेळेला विचारत चला बाळांनो. You got to be a little rapid now. मला आता काय, we are studying this for the first time. We'll do the revisions of this so that things will be easy. पहली बार हमको कुछ नहीं समझता है मैडम, पहली बार हमको कुछ नहीं समझता है. मग दूसरी बार थोड़ा सा कळता है, मग तीसरी बार थोड़ा सा जरा ज्यादा समझता है कि नहीं? इंटीग्रेशन को याद करो, इंटीग्रेशन को याद करो. काय नहीं समझा था पहली टाइम, नुसतं लिखा था. जो स्क्रीन पे है लिखो, नोटबुक आफ्टर नोटबुक्स फुल. फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब रात को करते हैं तो अच्छा होता है कि नहीं? 3 books of integration, fantastic. रात को करते हैं तो अच्छा होता है कि नहीं? ओके. करो अभी स्टार्ट. रात्रि रिवाइज करेंगे. यस. अभी ये तीसरे क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ देखो. तीसरे क्वेश्चन के वास्ते अब तुम मेरे तरफ देखो. तीसरे क्वेश्चन के वास्ते अब तुम मेरे तरफ देखो. Geometric mean of 3 numbers is 50. One observation 3 was wrongly taken and deleted. What is the corrected geometric mean? तुम करेंगे क्या ट्राई? तुम कोशिश करेंगे क्या? तुम कोशिश करेंगे क्या? करेंगे कोशिश तो मिलेगी कोशिश. करो. अरे कशिशच आली. कशिश यस म्हणती है. कशिश बोलती है यस.
करो. पॉसिबल, मेरे को नहीं पता, तुम करो. हा कलर भारी आहे की नाही एकदम. ये कलर अच्छा दिसतो. तुम्हाला सांगू का, लग्नात तुमच्या शालू घ्यायचा आहे ना, तो या कलरचा घ्या, छान दिसतो. लग्नातला शालू या कलरचा घ्यायचा, मस्त दिसतो एकदम. शालू मीन्स काय विचारते आता, मी काय सांगू. शालू मीन्स काय सांगू मी, कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करू. शालू म्हणजे काय, नॅन्सी को क्या मैं एक्सप्लेन करू. शालू कैसा एक्सप्लेन करू. शालू म्हणजे काय. एक कपड़ा है ऐसा. कपडा नवरीची साडी. कपडा घालतात का अंग नुसतं अंगात. हा, शालू म्हणजे साडी होती है, पण ते जरा अलग प्रकार की साडी होती है. चालेल. ब्राइडल कॉस्ट्यूम. ब्राइडल कॉस्ट्यूम. ब्राइडल कॉस्ट्यूम इन अ डे, बरं का, इन द डे टाइम. ब्राइडल कॉस्ट्यूम इन द डे टाइम म्हणजे शालू. करेक्ट. इन द डे टाइम, त्याला अंडरलाईन करा. ते आता मला नाही माहिती. हा सेजल, रात्री काय घालतात मला नाही माहिती. तुमचं आवड तुम्हाला काय ना. सेजल एकदम रात्री काय घालतात ते सांगते. काय ते. Okay, look at me now. बर नाही का सेजल, गंमत केली मी. सेजल चिमटे, मी चिमटे काढतो काय असे. तो अभी मेरे तरफ देखो तुम. Geometric mean is 50. Geometric mean of three numbers is 50. Means what? Tell me. Geometric mean of three numbers means what? Geometric mean of three numbers means what? म्हणजे काय, पण फॉर्म्युला काय. इट इज क्यूब रूट ऑफ ABC. तीन नंबर्स अगर ABC है तो दैट इज गिवन टू बी 50. तो इसका मतलब ABC इक्वल टू व्हाट. इसका मतलब ABC इक्वल टू 50 क्यूब होगा ना. क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो 50 क्यूब होगा. व्हाट इज दैट 50 क्यूब. What is that 50 cube? 125,000. 125,000. अभी एक रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इनमें से ABC में का एक रॉन्ग है, and that one wrong observation is 3. Therefore 3BC is equal to 125,000. So BC will be 125,000 and that divided by 3. तो ये कितना है. That divided by 3, ये कितना है. 41666. This is 41666.66. लेकिन अभी ये दो ही वैल्यूज रहेगी. Remain only two values. Remain only two values. And therefore the new geometric mean will not be square root of BC. It will be the square root of BC.
means it is square root of 41,666.66. कितना आया देखो 204.12 204.12 मी काय केलं तुम्हाला कळलं का बाळांनो मैंने क्या किया है तुमको समझा है क्या अरे Yes, sir. तुम्हाला ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आठवतो का तुमको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद है क्या ज्योमेट्रिक मीन मीन्स क्यूब रूट अभी nth रूट इन जनरल बट यहाँ क्यूब रूट सो क्यूब रूट ऑफ ABC is given to be 50 म्हणजे ABC is 50 क्यूब आणि 50 क्यूब म्हणजे 125,000 ये इधर तक तुमको समझा है क्या इधर तक हो तुमको सर हो सर. एक तुम्हें हो लक्ष्य सर. एक मिनट तुम जरा मेरे तरफ देखो कि जहां नहीं समझता है वहां इमीडिएटली इंटरफियर करो मायक्रोफोन शुरू करो और डाउट पूछो सगळा क्वेश्चन झाल्यावर विचारायचो तो N49 कुठून आला मग काय होतं माहितीये का की आय विल हॅव टू रिपीट द होल प्रॉब्लेम विच इज टाइम कन्झ्युमिंग एखादं नाही कळलं ना तर इमिडिएटली वही माइक शुरू करो समझा है क्या हाँ पण आता एक रॉन्ग ऑब्झर्वेशन आहे 3 सो लेट मी सपोज दॅट रॉन्ग ऑब्झर्वेशन A इज 3 म्हणजे 3BC इज इक्वल टू 125,000 म्हणजे BC इज इक्वल टू 125,000 डिवाइडेड बाय 3 हे कळलं का अथर्व अरे अथर्व मग ये कितना आया कठिनो अभी कितना आया 41,666.66 हे इतका आया क्या आता ओनली टू ऑब्झर्वेशन्स रिमेन ओनली टू ऑब्झर्वेशन्स B and C रिमेन आणि therefore is geometric mean is square root of BC is square root of BC म्हणजे it's square root of this 41,666.66 तो ये नया आंसर हो गया म्हणजे 204.12 ये तुमका आंसर हो गया यार तुम्हाला हे कळलं का बाळांनो मी काय केलं हो सर. जैसे वहां हमने सब्ट्रैक्ट किया था वैसे हमको इधर डिवाइड करना पड़ेगा वैसे हमको इधर डिवाइड करना पड़ेगा 204.14 ठीक है जो आया है वो लिखो 204.14 हे कळलं का तुम्हाला हो सर. तो फिर चौथा क्वेश्चन तुम अपना अपना करो हार्मोनिक मीन ऑफ 10 numbers is 23 additional observation 4 was included into the data what is the new harmonic mean करो what is the new harmonic mean तुम कोशिश करो तुम कोशिश करो सर 1 मिनिट वरती स्क्रोल करा ना लिहायचंय ते है नाही ते मी डिलीट केला आता लिहिचं लिहि आता पटकन कॉपी करू नका रे बाळांनो तुम्ही तुमचं करा कॉपी नका करू करो
Hmm. Hmm. हो गया. हम्म. हो सर. मग आता इकडे बघा. तुम अभी इकडे देखो. Look at me. Harmonic mean of 10 numbers is 23. What is the formula for the harmonic mean? बोलो पटकन. n N upon upon summation 1 x. upon x. N upon summation 1 upon x. That is equal to 23. But n कितना है? 10. म्हणजे 10 upon summation 1 upon x is 23. म्हणजे 10 upon 23 is summation 1 upon x. म्हणजे कितना है? 0.43478. 0.43478. ओके. आता काय होतं कि ये समेशन 1 अपॉन एक्स रॉन्ग हो गया क्योंकि ये ओरिजिनल है. अभी होता है क्या कि एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड किया, एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन एक्स करेक्ट को इंक्लूड किया, ऐड किया म्हणजे इंक्लूड किया, लेकिन एक्स रॉन्ग कुछ नहीं दिया है. तो मेरे को बोलो एन पे इफेक्ट क्या होगा? N is equal Add to one. +1. 10 का 11 हो जाएगा. एक और एड ये लिया कि नहीं? मतलब मेरे को बोलो कि ये 1 अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स ये किसका टोटल है? एक्स 1 अपॉन एक्स उसका टोटल होता है समेशन 1 अपॉन एक्स. बरोबर की नाही? म्हणजे ये समेशन 1 अपॉन एक्स इज द सम ऑफ 1 अपॉन एक्स. अभी तुम मेरे को बोलो कि समेशन 1 अपॉन एक्स करेक्ट, क्या एडजस्टमेंट लिखूं? Summation 1 upon x wrong करेक्ट plus 1/4. म्हणजे माइनस 1 अपॉन एक्स रॉन्ग आणि प्लस 1 अपॉन एक्स करेक्ट. जैसे स्क्वायर में स्क्वायर किया था वैसे अभी 1 अपॉन, पर ये उन्होंने दिया ही नहीं है. तो 0.43478 आणि प्लस एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड किया है जो 4 है, तो प्लस 1/4 म्हणजे किती आलं? 6847. 0.68478. हे झालं समेशन एक्स 1 अपॉन करेक्ट. मग परत नया हार्मोनिक मीन सेम फॉर्म्युला एन अपॉन दिस इज समेशन 1 अपॉन एक्स. म्हणजे ये एन बढ़कर कितना हो गया? 11. सो इट इज 11 अपॉन 0.63478. ये नया हार्मोनिक मीन. दिस इज द न्यू हार्मोनिक मीन. किती आलं? 16.081. 16.081. This becomes the answer. Check. रॉन्ग को डिलीट किया, करेक्ट को ऐड किया, पर यहाँ रॉन्ग दिया ही नहीं है, तो सिर्फ करेक्ट को ऐड किया आणि therefore n will increase. Therefore n will increase 16.063. Okay, 16.063 is answering one. Is the answer that you check करो. समझा है क्या तुमको? अरे तुम्हाला कळलंय का? हो सर. हो. n upon summation n upon बोल.
geometric mean it is given that 1 is added and 1 is deleted. काय additional observation is included, 4 is included. काय प्रॉब्लेम आहे? Sir, it's in geometric mean it is given that 1 is deleted and 1 is added. काय पूर्वी काय होतंय? पूर्वी काय झालं? क्या हो गया? अगर geometric mean में ऐसे दिया रहा, wrong डिलीट किया है और राइट को ऐड किया है तो कैसे करेंगे? वो प्रोडक्ट था इसलिए सब्ट्रैक्ट किया. ज्योमेट्रिक मीन में वो प्रोडक्ट था बाळा. यहाँ एडिशन है. कसं व्हायचं? क्यूब रूट ऑफ ए बी सी that was equal to 50. So ABC is 50 cube. That was 125,000. अभी ये प्रोडक्ट है कि नहीं? ये प्रोडक्ट है कि नहीं पूर्वी? अगो पूर्वी. तो प्रोडक्ट में से रिमूव करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं? प्रोडक्ट में से रिमूव करना है तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे. समझा क्या? कळलं सर. आणि हा सर समजा. समेशन ये था समेशन 1/x म्हणजे 1/x1 प्लस 1 दिस इज समेशन की नहीं. बस सब्ट्रैक्ट करना है तो 1/x रॉन्ग सब्ट्रैक्ट करो आणि ऐड करना है तो 1/x करेक्ट ऐड करो. प्रोडक्ट में से डिलीट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन समेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर म्हणजे यायचं होगा. समझा क्या? पूर्वी कळलं का बाळा? पूर्वी इज व्हेरी मेकॅनिकल. जस्ट ट्राय टू बी राइट ऑन द टारगेट. समझा है क्या बाळांनो? Yes, sir. हो. तो फिर अभी ये नोट नंबर 7 की तरफ देखो. आणि दिस नोट नंबर 7 यू हॅव ऑलरेडी डन इन द स्कूल एज वेल. पण आम्हाला कुठे काय येतं म्हणून काही येत नाही आम्हाला. देखो मेरे तरफ. करेक्ट. देखो मेरे तरफ. देखो, समझो, फिर करो. Look at me. Look at me. The very relation is, and remember this is for the little skewed data. अभी ये थोड़ा सा इसके बारे में हम skewed मतलब क्या है वो देखेंगे, लेकिन पहले जरा देखो. The very relation is what? Is mean minus mode and is equal to 3 times mean minus median. Is 3 times mean minus median. समझा? So this is the relationship between mean mode and median. Correct? So it is the relation between mean mode median. It is the relationship between mean mode and median. काय होता है? लिखा क्या तुमने ये रिलेशन को? हो. माता ये वैल्यूज निकालो. मीन इज 15, mode is 8, median is what? Mean is 15, mode is 8. So what is the relation you have? Is mean minus mode is equal to 3 times mean minus median. Values डालो सिर्फ बस, बाकी काही नाही. आणि therefore this is 15 minus 8 is equal to 3 times. This is 15 minus median. तो ये 7 हो गया. तो 7 by 7 is equal to, this is 45 minus 3 times median. So 3 times median is 45 minus 7, which is 38. And therefore median is 38 by 3. एम्पिरिकल म्हणतात का? एम्पिरियल नाही आवडत. एम्पिरिकल.
त्याला म्हणतात एम्पिरिकल रिलेशन, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एम्पिरियल नाही. सगळ्यात तुमचं किती छोटे आहे अजून. एम्पिरियल नाही बाबा, एम्पिरिकल फॉर्म्युला. आया क्या तुमका? 12.66. असू दे, असू दे. काय अभी ये करो दूसरा. अभी तुम ये दूसरा क्वेश्चन करो. मोड दिया है, मीडियन दिया है, मीन पूछा है. परत एकदा फॉर्म्युला लिखो. मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड is 3 times mean minus median. Values डालो. is mean minus 12 is equal to 3 times is mean minus 10. म्हणजे mean minus 12 is equal to 3 times mean minus 30. म्हणजे 30 minus 12 is 3 times mean minus mean म्हणजे 2 times mean म्हणजे 18 is equal to 2 times mean. So 9 is the mean. Nalo. 9 is the mean. हो गया है क्या तुमका? हो. But this relation is valid only for the moderately skewed data. आता ये skew क्या भानगड़ है वो हम कल देखेंगे. बिल्कुल. अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है. We are almost about to finish this. We are almost about getting towards the end of the chapter. ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो theory बची है that is still very very important. That is still very important. Okay. So goodbye. So goodbye.